सो लेट्स सी, मैंने निकाला इनका प्रोफाइल. सो व्हाट शी सेड, A ये foreign एफसीआरए बिल जो है उसके बारे में कल भी अपन ने थोड़ा बात किया था. तो बेसिकली यही है एफसीआरए बिल. जब 1976 में आया था उसके तब से कि मतलब ये जो एनजीओ वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन लोग को बाहर से पैसे आते हैं, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना और उसको किस तरीके से अकाउंट करना गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट भी समझे कि ये पैसे कहाँ कैसे यूज हो रहे हैं. तो उसको वो रिफॉर्म करता है, वो एफसीआरए बिल देखता है. ठीक है. तो अब मैडम इसमें क्या बोल रही है और इसको हमने मतलब डाइसेक्ट करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं. तो मैडम का पहले सुन लेते हैं कि क्या बोल रही है. report damaged India's tea exports. No protest, no rally, just a document. Most people think foreign interference means agitation, लाइट को क्या हो गया मेरे. protests, roadblocks, campaign networks. But what if it is a research paper? And that paper becomes a foreign government's trade policy. That is a harder weapon to fight. And it is exactly what FCRA's old framework was never built to catch. FCRA's old framework was never built to catch. तो इनका ये बोलना है isn't arbitrary. तो यहाँ पे कैप्शन में क्या लिखा है, दी एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 isn't arbitrary. तो इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं कि पहले जो एफसीआरए बिल था वो, जो अभी मैडम ने कहा कि जो प्रॉपर पैसे का जो हिसाब है वो आप वेगली नहीं बोल सकते हैं. जो एनजीओ वेगली बोल देती थी कि हाँ हम लोग ने इसमें खर्च किया, डायरेक्टली ऐसा बोल देती थी, एक ब्रॉड कैटेगरी में बोल देती थी. बट उन लोग को अब स्पेसिफाई करना है ये 2026 में. ओके, ये ऐसा बोल रही है कि 2026 के बिल में जो पास होगा वो अब होगा. पूरा सुन लेते पहली बात. So you see, Oxfam India was registered ठीक for है, educational ये एग्जांपल ले लेते हैं. activities, Okay. eligible for foreign donations under FCRA. एफसीआरए. ओके, It produced a report on Assam's tea industry. ठीक है. The CBI found no field research, limited sample, key voices excluded. Okay. Tea workers, unions, the state government never consulted. Okay. It still made sweeping conclusions about the entire industry. Mhm. The US Department of Labor relied on that report. In 2022, Indian tea was listed as a good produced by child or forced labor. A report that ठीक never है. asked Assam a single question cost it its export reputation. Okay. Under the old FCRA, this was invisible. ओके, लेट्स सी. अभी गौर से सुनना. हाँ, Foreign money received, foreign money spent. फॉरेन मनी रिसीव, फॉरेन मनी स्पेंड. Declared purpose, educational activities. बस इतना ही पहले बोलते थे कि ये ब्रॉड में ऐसा बोल दिया कि ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हम लोग ने खर्च कर दिया ये पैसा. The law tracked the check, not what the check built. It couldn't see that educational activities was a report that traveled straight into US government policy. The ओके 2026 bill changes that. ओके, तो अब ये बोल रही है जो 2020 बिल है वो ये बदल रही है कि let's Every see. rupee must now be tied to a specific output. What Okay. was produced for whom? Educational activities is no longer a declaration. It has to be a verifiable deliverable. ये बोलना है कि जो पैसे आपने एजुकेशन में खर्च किए, जो आप पहले बोलते थे सिर्फ कि एजुकेशन में खर्च किए, अब आपको ये 2026 के बिल में आपको ये कहना पड़ेगा कि आपने कहाँ खर्च किए, किसके हित में खर्च किए, कितने खर्च किए. ठीक है, ये इन्स एंड आउट्स पूरा बताना पड़ेगा. ठीक है. And Oxfam India isn't the only case, by the way. Center for Policy Research Okay. used foreign donations for तो इनका वो बोलना था कि ये स्टेटमेंट था भाई कि डिटेल में आपको देना पड़ेगा एनजीओ वगैरह को कि ऐसा ऐसा होना चाहिए कि मतलब कहाँ किसको कैसे कितना गया है. अब ये और दूसरे एग्जांपल्स देती है ऑक्सफैम के बाद. educational activities to fund litigation against coal mines and power plants. हाँ. Life Trust used foreign funding to challenge 12 thermal power projects Okay. and one coal block simultaneously. The pattern is the same. Foreign money, declared purpose, actual output pointing in completely different डायरेक्शन. ठीक है. The 2026 bill is building the audit trail that closes the gap between what was declared and what was done. And this is exactly what makes the FCRA 2.0 a landmark bill in India's history. Tell me what you think about this in the comments. ठीक है. ठीक है, समझ गया होगा सबको कि भाई पूरे वीडियो में इनका यही बोलना है कि जो 2026 बिल में आएगा वो अब लोगों को डिटेल में बताना है, ना कि ब्रॉड में बताना है कि कहाँ खर्च किए. अब ये बताना है कि कहाँ खर्च किए, कितने खर्च किए, क्यों खर्च किए, मतलब किसके ऊपर खर्च किए. और हाँ ठीक है.
मैंने ये चीज़ क्यों पकड़ लिया भाई कि मुझे लगा, मैंने जब एफसीआरए बिल का जो ये आया है अपडेट, ये जब मैंने पढ़ा था तब मैंने ये मुझे याद था कि भाई जो अब, क्योंकि एफसीआरए बिल बहुत पहले से, अब जो एफसीआरए बिल के अब जो पार्लियामेंट में जो विवाद चल रहा है कि भाई 2026 में ये बिल पास होना चाहिए, वो अपडेट है। वो अपडेट ऐसा है कि मेनली सिर्फ उसमें यही अपडेट है कि भाई जो एनजीओज और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो ये कैटेगरी में आती है एफसीआरए में, वो जब एफसीआरए स्टेटस खो देती है या एक्सपायर हो जाता, एफसीआरए उनका सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो जाता है 5 साल के बाद, या एनजीओ बंद हो जाती है वगैरह वगैरह, तो जो उन लोग ने काम किए, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम, कुछ कुछ स्कूल बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, तो उसको कौन टेक ओवर करेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा? ठीक है, तो वो करेगी गवर्नमेंट की एक असाइंड डिपार्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उसको हैंडल करेगा, या तो वो किसी और को हैंडल देगा, या खुद हैंडल करेगा, या कुछ देखेगा, वो उसके वो गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट के हाथ में रहेगा। तो ये अपडेट आ रही है, और ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर इसके खिलाफ इसलिए है कि जो पुराने एनजीओ थे जिसको ये एफसीआरए मिली हुई थी, उनके ऊपर ये लागू ना हो। वो लोग ये चाहते हैं जो पुराने एनजीओ वगैरह है, उनके जो काम की हुई चीजें हैं वो कहीं गवर्नमेंट ना ले ले। तो अपोजिशन, क्योंकि तो अपोजिशन यही चाहेगी ना, जो उन लोगों ने काम किया था वो कहीं इन लोग को ना मिल जाए, उनको क्रेडिट मिलने लग जाए, सो एंड सो फोर्थ। तो ऐसा है। अब फिर मैंने सोचा भाई कि क्या मैंने गलत पढ़ा, मैंने कम पढ़ा, मैं क्या मिस किया? तो मैं चैट जीपीटी पे अपना ये इस पे गया, क्लॉड पे गया, ये भी चैट जीपीटी का ही अल्टरनेटिव है। तो मैंने भाई पूरी बात बताई कि इसने ऐसा ऐसा बोला है, इस इंसान ने, क्या है नाम, रीचा द्विवेदी, तो ऐसा ऐसा बोला है कि ये कितने हद तक क्या सही है मुझे बताओ। तो लेट्स सी, मोस्ट सो द इंडिविजुअल केस क्लेम्स मोस्टली रियल बट नीड कैवियट्स। तो इन्होंने जो एग्जांपल्स दिए, रियल है, समवॉट एक्यूरेट है, एंड ठीक है, चलो मान लिया। बॉटम लाइन, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती? whereas the post framing is misleading. The post implies the bill's core purpose is to create a new mechanism to catch diversion. Foreign money arrives for one purpose and funds something else. What mechanism exists to catch that? That's not quite what the bill does. Based on current reporting, the Foreign Contribution Amendment Bill in 2026 introduced a framework for supervision, management, and disposal of foreign contribution and assets of an organization that ceases to have an FCRA certificate introduced, जो मैंने बोला। ठीक है, तो एफसीआरए जब उनका हट जाएगा, जब उनके पास नहीं रहेगा एफसीआरए, तो वो जो उन लोगों ने किया है वो कौन मैनेज करेगा? वो है, ठीक है, वो गवर्नमेंट मैनेज करेगी। द मैकेनिज्म टू डिटेक्ट डाइवर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट्स अंडर द करंट एफसीआरए 2010। ठीक है, ये फिर से पढ़ लेते हैं। द मैकेनिज्म टू डिटेक्ट डाइवर्जन, जो ये मैडम बोल रही है डाइवर्जन की बात, कि इसको ब्रॉड एजुकेशन पर्पसेस ना बता के पूरा बताने की कहाँ क्या कर्ज हुआ है, तो वो तो पहले से ही है दीदी। दैट्स हाउ ऑल द केसेस द पोस्ट लिस्ट्स वर कॉट। हाँ, तो ये जो ऊपर के केसेस है ये ऐसे ही पकड़े गए हैं। ये जो एफसीआरए 2010 में जब बिल आई थी, इसके वजह से वो लोग पकड़े गए थे। ओके, years before this bill जो अभी आने वाली है। So the no mechanism existed, framing is off, enforcement already happens under existing law. What's actually new is what happens to assets after registration is cancelled, surrendered, lapsed. जो लॉ दीदी बात कर रही है वो पहले से है, सालों से है। ये कितने दिन पहले का है कंटेंट? 2 दिन पहले डाला, मेरे को लगा कि 2010 का पहले का कंटेंट है। ना दीदी ना, सॉरी। So what's actually new is what happens to assets after registration is cancelled, surrendered, lapses. A designated authority gets powers where foreign contribution and assets shall provisionally vest. हाँ, जो पैसे वगैरह है वो भी रहेंगे in it on
cancellation or surrender of registration and can take over management of the organization in public interest. गवर्नमेंट भी जब लेगी तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही लेगी, ठीक है, पब्लिक के सहायता के लिए ही जो एसेट्स जो एनजीओ ने गैदर की थी, जो चीज़ें बनाई थी, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल, कुछ भी चीज़ें की हो, वो गवर्नमेंट पब्लिक हित में ही यूज करेगी, ठीक है. प्रोविजनल वेस्टिंग कम्स, अब गवर्नमेंट अगर लेती है और पब्लिक इंटरेस्ट में यूज करती है, वो भगवान जाने क्या होगा. वो अपने को भी मालूम है कि पीछे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन बोल तो यही रही है गवर्नमेंट, तो क्या कर सकते हैं अब, ठीक है. तो प्रोविजनल वेस्टिंग कम्स विथ फुल रिस्टोरेशन इफ रजिस्ट्रेशन इज रिन्यूड. इफ द organization fails to get renewed, restored, the assets stand permanently vested and can be transferred for public purposes to a ministry. As of July 15, 2026, there are 14,449 active FCRA certificates against 22,498. That is almost a difference of 8,000 cancelled. Okay. And 15,212 deemed expired. This backlog of orphaned assets is the stated rational, not real time fraud detection. ठीक है, ओके. हाँ, जो ये जो एक्सपायर्ड है, ठीक है, अब ये 12,000 जो जिनके एक्सपायर हो चुके हैं, तो ये जो इम्प्लीमेंट होगा, तो ऑपोजिशन को ये डर है कि कहीं ये जो इन लोग ने किया था ये चीजें 12,000 ये ऑर्गेनाइजेशंस ने, वो कहीं गवर्नमेंट नहीं ले ले, और फिर गवर्नमेंट को क्योंकि फेवर हो जाएगा, तो गवर्नमेंट पब्लिक हित में उसको यूज करेगी, तो लोग खुश हो जाएंगे, फिर ऑपोजिशन सैड हो जाएगा क्योंकि लोग खुश हैं करंट गवर्नमेंट से, तो ये लूप चलते रहता है भाई, तो इसीलिए चलता है. अब बाकी इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट, द पोस्ट ओमिट्स पार्लियामेंट डिफर्ड consideration of the bill following significant opposition from civil society organizations, religious communities, political parties. Critics argue it moves in the opposite direction on ठीक है. It has registered withdrawal opposition from Christian churches and missionary organizations concerned. हाँ ठीक है, ये सब इन लोग का तो कैंसिल ही होना चाहिए यार, ये सब क्या है, मिशनरी लोग. रिवाइज FCRA rules notified June also introduced a bar on proselytization as grounds for FCRA ineligibility, a separate and heavily contested provision the post doesn't mention. What is this? Proselytization, the act of trying to change a person's religion. अरे यार ये तो कन्वर्जन, वाओ, रिलीजियस कन्वर्जन यार, पक्का ना, मैंने जल्दी में क्या पढ़ लिया. हाँ, पॉलिटिकल, अच्छा पॉलिटिकल पार्टी भी है. पर्सन्स रिलीजियस फेथ, पॉलिटिकल पार्टी और डीप बिलीव्स टू मैच योर ओन. ओके 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 ओके, कहाँ गया. हाँ, this remains a live unresolved political fight, not settled. Yeah, whatever. So the underlying case facts are broadly grounded in real investigations, but the post's central argument, bill is new detection mechanism, misdescribes what the bill actually changes, and it leaves out that the bill is contested and currently stalled pending rather than a settled response to these cases. Yes, हाँ, क्योंकि जो केसेस हैं वो कुछ चल भी रहे हैं, जो ये ऊपर हैं, जो मैडम ने अपने पोस्ट में डाली एग्जांपल के तौर पे, तो वो भी चल रही हैं चीज़ें, तो उसको भी सीधा ये आउटराइट ये नहीं बोल सकते कि वो लोग ने भी गलत किया है या कुछ किया है. सो व्हाट एवर द केसेस, दैट्स इट. तो दीदी, that's all I have to say to you. Let me know if I was wrong. Yeah, Claude was wrong, क्योंकि Claude के पास I think Claude के पास अच्छे खासे इंफॉर्मेशन है, you know, ये देखो यहाँ पे से उठाया इसने, यहाँ पे से उठाया, यहाँ पे से उठाया. So yeah, that's it, दीदी.